اس وقت کے عسکری قیادت اور ظاہر حکومت وقت نے جو بیٹھک کی ہوگی اس میں کچھ ایسے فیصلے کیے گئے ٹی ٹی پی پاکستان کے حوالے سے. وہ کیا فیصلے تھے؟ ان پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے. آج جو تنقید کر رہے ہیں وہ بلا وجہ کر رہے ہیں. پہلی بات یہ تھی کہ جو پاکستانی تھے انہیں واپس آنا تھا، تو فیصلہ یہ ڈسکشنز ہوئی کہ ان کو مین سٹریم کیا جائے. نیشنل اسمبلی میں ان کیمرہ سیشن میں بریفنگز دی گئی، سب اس میں تھے، شہباز شریف تھے، بلاول تھے، سب تھے. جتنی لیڈرشپ ہے آج جو آج اعتراضات کر رہے ہیں وہ سب بیٹھے ہوئے تھے. آج لاہور میں ایک جورس کی ملک کے ٹاپ وکلا کی ایک راؤنڈ ٹیبل کانفرنس تھی. اس میں ہر پارٹی کے ہر مکتب فکر کے وکیل موجود تھے اور نون نیمز تھے وہاں. اس پر 90 دن کے جو انتخابات کی حد ہے اس پر کوئی دو آراء نہیں تھی، سب متفق تھے. اور کون کرا رہے تھے؟ پیپلز پارٹی والے. تو آصف علی زرداری ان سے رہنمائی کیوں نہیں لیتے؟ پارلیمنٹ میں بحث کروانے کے لیے ان میں اتنی سخت اتنا حوصلہ نہیں ہے. آئیے پارلیمنٹ میں بحث کرنی ہے تو پوری پارلیمنٹ بٹھائیں. یہ ادھوری پارلیمنٹ نہیں، لنگڑی لولی نہیں، پوری پارلیمنٹ بٹھائیں. تحریک انصاف بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی بات کریں، ہم بھی بات کریں، قوم فیصلہ کرے کیسے کرنا ہے. جہاں تک پی ڈی ایم گورنمنٹ کا تعلق ہے، یہ الیکشن نہیں چاہتے، یہ ہر راستے میں رکاوٹ کھڑی کریں گے. اب سوال یہ ہے، سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ لے لیا، آئین ان کو اس پہ تقویت دے رہا ہے. یہ اب آپ کو ایک فیصلہ کرنا ہوگا کہ اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہونی ہے یا نہیں ہونی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں جاسمین منظور اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بس بہت ہو گیا. پاکستان کی سیاسی فرنٹ پر بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں، تو آج کی بڑی خبر سے آغاز کر لیتے ہیں. ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں ایک بہت ہی اہم بیٹھک ہوئی. اس بیٹھک کے اندر نہ صرف اعلیٰ سطح کے عسکری حکام بلکہ اس کے علاوہ پی ڈی ایم کی ساری قیادت سب سر جوڑ کر بیٹھے اور بات ساری ہوئی دہشت گردی کے حوالے سے. دہشت گردی کے حوالے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ پرانی حق گورنمنٹ، اور ظاہر سی بات ہے پرانی گورنمنٹ کا مطلب تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہوگی، تو تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے دور میں کے پی میں جو معاہدے ہوئے یا آنے کی اجازت دی گئی دہشت گردوں کو ری سیٹل کرنے کی کوشش کی گئی، وہ اس کا خمیزہ پاکستان آج بھگت رہا ہے. اور ہر جگہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہیں نہ کہیں سیکیورٹی کو فورسز کو نہ صرف نشانہ بنایا جائے، انہیں ہدف بنایا جا رہا ہے. اور کہا گیا کہ یہ ایک غلط ڈیسیجن تھا. اس میں جو سب سے بڑی آج کی خبر ایک یہ بھی ہے کہ اسی ساری ڈائلاگ اور اسی ساری ڈیبیٹ میں جو اس وقت پاکستان جس میں الجھا ہوا ہے، جس میں آپ نے پارلیمنٹ کا سیشن دیکھا جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چلے گئے، ان پر اب ان کا ایک کیس سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں بھیج دیا گیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دو تین اہم باتیں ہیں اور وہ اس پر ہم بات کریں گے آج کے اس پروگرام میں. ابھی اطلاعات یہ بھی آئی ہیں کہ علی زیدی صاحب ان کو یہاں سے اٹھا کر لے جایا گیا ہے. نامعلوم افراد وہ اپنی اجلاس کر رہے تھے اپنے کارکنان کے ساتھ، دو لوگ آئے، کوئی وارنٹ نہیں، کوئی گرفتاری کا کوئی عمل نہیں، کچھ نہیں، آئے پکڑا لے گئے. ہمیں نہیں پتا، بتایا جا رہا ہے تحریک انصاف کی طرف سے کہ ہمیں نہیں پتا اس وقت وہ کہاں موجود ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب پاکستان کے ترین سیاستدانوں میں سے ہیں، تمام ملک کی صورتحال کو سمجھنے والے، اور میرا خیال سے مجھے یہ بھی ایک فیلنگ آتی ہے کہ ون آف دوز پیپل who have been trying to say کہ dialogue is the only option. But that's my perception. شاہ صاحب بہت بہت شکریہ، وائس چیئرپرسن تحریک انصاف کے، پاکستان کے بہت سے اعلیٰ عہدوں پہ رہے، فورن منسٹر رہے. پاکستان کی ڈپلومیٹک کمیونٹی کو، دنیا پاکستان کو کس نظر سے دیکھتی ہے، اور دہشت گردی کے حوالے سے بھی جو باتیں ہیں وہ ان سے کریں گے. بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. شاہ صاحب، میں پہلی گفتگو آج آپ سے اس طرز میں کرنا چاہتی ہوں. یہ دہشت گردی کے حوالے سے بار بار اس پر بھی الیکشنز پر بھی آئیں گے کہ آپ الیکشنز مانگ رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں. ابھی حال ہی میں جو جوائنٹ سیشن ہوا اس میں جو دہشت گردی کے حوالے سے بات چیت کی گئی اور جس طرح کہا گیا
کہ حکومت نے سیریسلی نہیں لیا دہشت گردی کے اس عنصر کو، وہ پھر جگہ جگہ پھیلنا شروع ہو گئی، اور اب ریٹیریٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ کوئی نیا آپریشن نہیں ہے. اٹس گوئنگ ٹو بی دا سیم آپریشن that was launched by General Kiani over to General Rahil, and I don't know what General Bajwa did, but continued now will be under General Asim Munir. آپ ایگری کریں گے کہ یہ دہشت گردی پہ ہلکا ہاتھ رکھا آپ لوگوں نے، آپ کی حکومت نے؟ دیکھیے، دہشت گردی پر پوری قوم کا اتفاق تھا کہ ہم اپنی ریٹ آف اسٹیٹ جو ہے ہم نے اس کو اسٹیبلش کرنا ہے، اس پہ کوئی دو آرا نہیں، اور ہم اس قسم کی کارروائیاں ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے. اور اس پہ پاکستان نے قیمت ادا کی، جانی اور مالی قیمت ادا کی. پیس پروسیس شروع ہوا، اس پیس پروسیس کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا، اور فیسیلیٹیٹ کرنے کے بعد افغانستان میں ایک رجیم چینج ہوا، ایک نئی حکومت آئی، اور وہاں امن عامہ کی صورتحال پہلے سے کہیں بہتر ہوئی. انہوں نے ہم سے وعدہ کیا، اور وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، یعنی کہ دہشت گردوں کو پاکستان کے خلاف کارروائیوں کی اجازت نہیں دیں گے. انہوں نے بڑا مناسب ان کا فیصلہ تھا، اور ہم نے بھی یہی کہا کہ ہم بھی نہیں ہونے دیں گے. شاہ صاحب، یہ جو آپ معاہدے کی بات کر رہے ہیں، یہ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ معاہدہ ہوا؟ نہیں، میں عرض کر رہا ہوں جو نئی حکومت آئی طالبان کی افغانستان کی، انہوں نے کہا کہ ہم اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف افغانستان کی استعمال نہیں ہونے دیں گے. ٹھیک، اس کے بعد جو ٹی ٹی پی کا عنصر ہے جو یہاں سے فرار ہو کر گیا افغانستان، اور وہاں ان کے اڈے قائم تھے، ان کی رہائش تھی، اور ان کی پشت پناہی بھی کر رہے تھے، بہت سے عناصر کر رہے تھے، ہمارے ایک مشرقی پڑوسی کر رہے تھے، ان کی جو ایجنسیز ہیں، را ہیں، وہ پشت پناہی، پیسہ، اسلحہ، سب کچھ. لیکن ان کا یہ خیال تھا کہ بھائی ہے تو یہ پاکستانی، یہ افغان تو ہے نہیں، الٹیمیٹلی انہیں پاکستان لوٹنا ہے، تو کیا کیا جائے؟ پاکستانی شہری ہیں. ان کا خیال مطلب وزیر اعظم کا خیال تھا یا چیف کا خیال تھا؟ ایک تھے جو جنگجو تھے، اور شاہ صاحب یہ خیال کس کا، ان کا کس کا خیال تھا؟ اس پہ ڈسکشنز ہوئی. ان ڈسکشنز میں جو اچھا، شاہ محمود قریشی صاحب سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، وہ اس وقت کا سینیریو بتا رہے ہیں کہ ایونچولی یہ ڈیسائیڈ کیا گیا، مطلب ظاہر سی بات ہے جو سٹنگز ہوئی ان کی بات سے جو مجھے سمجھ میں آیا، وہ یہ کہہ رہے ہیں وی ول بی ٹاکنگ ٹو ہم، بٹ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، بتانے کی اور سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو لوگ وہاں بھاگ کر چلے گئے تھے وہ پاکستانی تھے، تو ایونچولی انہیں پاکستان واپس تو آنا تھا. تو اس حوالے سے جو ڈسکشنز ہوئیں اس میں اب وہ بتانے جا رہے ہیں کہ اس ڈسکشنز میں کیا فیصلے کیے گئے. از ہی کنیکٹڈ؟ لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم بیک. شاہ محمود قریشی صاحب سے گفتگو کر رہے تھے. شاہ صاحب، آن دس نوٹ کہ آپ مجھے بتا رہے تھے کہ اس وقت کے عسکری قیادت اور ظاہر حکومت وقت یا وزیر اعظم نے جو بیٹھک کی ہوگی اس میں کچھ ایسے فیصلے کیے گئے ٹی ٹی پی پاکستان کے حوالے سے. وہ کیا فیصلے تھے؟ ان پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے آج. دیکھیے، جو تنقید کر رہے ہیں وہ بلا وجہ کر رہے ہیں. میں اس کی وجہ بتاتا ہوں. پہلی بات یہ تھی کہ جب ان کو جو پاکستانی تھے انہیں واپس آنا تھا، تو فیصلہ یہ ڈسکشنز ہوئیں کہ ان کو مین سٹریم کیا جائے. اب مین سٹریم کرنے کے لیے شرائط تھیں. وہ شرائط کیا ہیں کہ انہوں نے پاکستان کے آئین کے ریٹ کو تسلیم کرنا ہے، پاکستان کے آئین کو ایکسیپٹ کرنا ہے، اس کے اندر رہنا ہے، اور یہاں آ کے جنگجو نہیں بننا، امن سے رہنا ہے، ہتھیار لے کے نہیں آنا، اور یہاں آ کے اور اپنا ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے ان کو. اب اس کے لیے آج جو تنقید کر رہے ہیں ان کو بریفنگز دی گئیں
नेशनल असेंबली में इन कैमरा सेशन में ब्रीफिंग्स दी गई, सब इसमें थे, शहबाज शरीफ थे, बिलावल थे, सब थे, जितनी लीडरशिप है आज जो आज इतराजात कर रहे हैं वो सब बैठे हुए थे। 2 नशिस्तें हुई, 2 दफा ब्रीफिंग हुई। उस वक्त के आर्मी चीफ थे, उस वक्त के DGI थे, जनरल फैज हमीद थे, जनरल बाजवा थे, सब ने ब्रीफ किया। और उस ब्रीफिंग के बाद पूरे खित्ते की सूरत हाल, जो मुख्तलिफ एजेंसीज की कार्रवाइयाँ थीं, जो रीजनल मुख्तलिफ कैरेक्टर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी जो पॉलिसीज थी, पूरा एक नक्शा खींचा गया। और फिर ये फैसला हुआ कि अब हमने आगे बढ़ना है और हमें एक लाहेमल मुरतब करना है। उस पर एक ब्रॉड डिस्कशन हुई थी, लेकिन फिर हमारी हुकूमत रुखसत हो गई। हमारी रुखसती के बाद तो जो हुकूमत आई, ये जिम्मेदार तो वो हैं, वो बताएं, नंबर 1। नंबर 2, आप ये देखिए कि तहरीक इंसाफ के जो 3.5 साल गुजरे हैं, उसमें दहशतगर्दी के इंसिडेंट्स में बतदरीज कमी आई है। ये जो अब राइज हुआ है पिछले 1 साल में, आप देख रहे हैं बतदरीज उसमें इजाफा हुआ। उसके जिम्मेदार हम कैसे हो सकते हैं? जब स्वात में लोग आने शुरू हुए तो क्या हमने उसको पॉइंट आउट नहीं किया? क्या मुराद सईद ने और हमारे PTI के लोगों ने वहाँ के लोगों को मोबिलाइज नहीं किया दहशतगर्दों के खिलाफ, दहशतगर्दी के खिलाफ? हमने निशानदेही की नहीं की? क्या राना सनाउल्लाह ने ये बयान नहीं दिए थे कि नहीं ये तो ऐसी बात नहीं है, यहाँ तो एरियाज में कोई ऐसे बाहर से लोग नहीं आए? ये अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है बड़ी आसानी से वो पीछे की तरफ मुंतकिल कर रहे हैं। नहीं हो सकती। ब्रीफिंग्स के आप हिस्सेदार थे, आप जिम्मेदार हैं, और कोई सियासी क़यादत अकेला फैसला नहीं कर सकती। नेशनल सिक्योरिटी में पाकिस्तान बॉर्डर मैनेजमेंट उनकी होती है, फेंसिंग उन्होंने की है, बॉर्डर को वो मैनेज करते हैं और सिक्योरिटी सिचुएशन को वो ओवरसी करते हैं। हाँ, हुकूमत वक्त और लोगों की सपोर्ट उन्हें दरकार, वो ओवरसी करते हैं। हाँ, हुकूमत वक्त और लोगों की सपोर्ट उन्हें दरकार होती है और वो हम देने के लिए तैयार थे। लेकिन आज कह देना अब ये इलेक्शन से फरार के रास्ते बनाने हैं और उसके लिए कह देना कि जी सिचुएशन डिटीरिएट कर गई है, उसके जिम्मेवार वो थे, ये गलत बात है। हकायक को तस्लीम करें और हकायक को तस्लीम करते हुए हमें आगे बढ़ना है। दहशतगर्दी एक लानत है, हमने मिलकर इसका मुकाबला किया है और मिलकर हमने मुस्तकबिल में भी इसका मुकाबला करना है। हमारी अफवाज ने कुर्बानियां दी हैं, हमारी आवाम ने कुर्बानियां दी हैं, उस पर एक नेशनल कंसेंसस था, उस नेशनल कंसेंसस को बरकरार रहना चाहिए। एक नेशनल एक्शन प्लान मुरतब किया गया था, उसको फॉलो थ्रू करना चाहिए। शाह साहब आगे बढ़ते हैं। आपने जॉइंट सेशन देखा होगा, मतलब है सेशन इन द सेंस के जॉइंट सेशन तो बाद में हुआ, उससे थोड़ा पुरानी बात कर लेती हूँ। सेशन जिसे 75th सेमिनार कहा जा रहा है, सेलिब्रेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आइन की सेलिब्रेशंस। अच्छा, उसमें हमने देखा आसिफ अली जरदारी साहब सदर मुमलिकत फॉर्मर खड़े हुए और उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पर थोड़ा बहुत तो अपने हिस्टोरिकली जो उनके साथ हुआ वो बताया, लेकिन देन कमिंग ऑन टू further things, he categorically said कि डायलॉग के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, डायलॉग होना चाहिए, हम चाहते हैं कि डायलॉग। और फिर उन्होंने हामिद मीर के इंटरव्यू में क्या कहा, पहले आप इसका जवाब दे दें फिर मैं उस तरफ जाऊंगी, बिकॉज वो भी 1-2 इंपॉर्टेंट बातें। तो उन्होंने डायलॉग की बात की, लेकिन उन्होंने कहा यू गाइज हैव टू गो टू द प्राइम मिनिस्टर, मतलब बात का दरवाजा खुला होगा और हर चीज पे बात होगी, डिक्टेट नहीं किया जा सकता कि सिर्फ इन नुकात पे बात की जाएगी। तो इस पर तहरीक इंसाफ का क्या इंटरनली लाइक एक कहते हैं ना, आप लोगों ने ब्रेनस्टॉर्मिंग की होगी, एक तो चले सियासी बयान होगा बट इंटरनली ब्रेनस्टॉर्मिंग की होगी, उन्होंने 3 रुकनी कमेटी भी बना दी है। तो आपका क्या इसमें मौक़िफ़ है? यू वांट टू एक्सेप्ट दिस? पहली बात जैस्मिन ये है कि जो उन्होंने अपनी कहानी का जिक्र किया जी, तो उस कहानी के जो एक्टर्स थे वो उनके साथ बैठे हुए थे, उनके बगल में बैठे हुए थे, जिन्होंने उन पे केसेस कायम किए, जिन्होंने उनके तशद्दुद किया, जिनकी जबानें काटी, वो मुस्लिम लीग नून वाले थे, जिनकी काबीना के वो हिस्सेदार हैं। तो ये रिकॉर्ड को मैं दुरुस्त कर लूं, नंबर 1। नंबर 2, डायलॉग की बात की, डायलॉग से हमने कभी इनकार नहीं किया, लेकिन डायलॉग की पहल कौन करता है? डायलॉग की पहल हुकूमत करती है। हम चाहते हैं कि डायलॉग आप करना चाहते हैं तो बताइए कि आपका उसका एजेंडा क्या होगा, उसमें कौन होगा शामिल, कौन नहीं होगा,
आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि वो अनकंडीशनल होने चाहिए, अच्छी बात है, अनकंडीशनल होने चाहिए, लेकिन हम हर इशू पे बात करेंगे और हम करने को तैयार हैं। अब उस पर हम कह रहे हैं कि इस वक्त मुल्क को इस भंवर से निकालने के लिए जो पहली ज़रूरत है वो नए इंतखाबात की है, और इस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जो है इस वक्त जो आप देख रहे हैं वो इस नुक्ते पर है कि इंतखाबात जो होने हैं 90 दिन में वो आइन की कदगन है या नहीं है। एक दिन में हो सकता है, एक दिन में इंतखाब नहीं हो सकता। आसिफ अली जरदारी कह रहे हैं कि हमें इतराज इलेक्शन पर नहीं है, हमें इलेक्शन की टाइमिंग पर है। अब टाइमिंग आपके मेरे कंट्रोल में नहीं है। 2 असेंबलियों की तहलील हो गई, आइन की कदगन है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने हैं, तो वो टाइमिंग तो आइन ने तय कर दी। ना आसिफ अली जरदारी ने करनी है, ना शहबाज शरीफ ने करनी है, ना मैंने करनी है, ना इमरान खान साहब ने करनी है, वो आइन ने तय कर दी। बाकी बात आ गई कि एक दिन इंतखाब होना चाहिए और उस पर गुफ्तगू शुरू। हाँ, 3 असेंबलियों का हम इत्तफाक कर सकते हैं, बलूचिस्तान, सिंध और मरकज के जो इंतखाबात हैं उस पर डायलॉग के जरिए हम एक तारीख पर मुत्तफिक हो सकते हैं और उस पर हमें कोई इतराज नहीं। लेकिन बात करने के लिए तैयार है। पर 2 असेंबलियां जो हैं पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की, वो तो आइन की हद के अंदर होने हैं। जी हाँ, वो तो नहीं, वो तो आईनी बंदिश है ना, आईनी बंदिश है। देखिए ना, आज तो नहीं मान रहे ना, देखें आईनी जूरिस कॉन्फ्रेंस हुई, राउंड टेबल हुई। जी बिल्कुल हुई। देखिए लेकिन शाह साहब ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन डेवलप हो रही है उनके मानने की बात नहीं है। That's true. Please understand. No, I do understand, but you know, it's like pushing the country more into a quagmire and creating more hurdles and barriers and constitutional crisis and you know, like pulling it up together so much ताकि कुछ हो जाए। देखिए, प्लीज अंडरस्टैंड। जी देखिए, अंडरस्टैंड कीजिए। आज लाहौर में एक जूरिस की, मुल्क के टॉप वकला की एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी। उसमें हर पार्टी के, हर मकतब फिक्र के वकील मौजूद थे और नोन नेम्स थे वहां। उस पर 90 दिन के जो इंतखाबात की हद है उस पर कोई दो आरा नहीं थी, सब मुत्तफिक थे। और कौन करा रहे थे? पीपल्स पार्टी वाले। तो आसिफ अली जरदारी उनसे रहनुमाई क्यों नहीं लेते? आसिफ अली जरदारी एतजाज एहसन से, आसिफ अली जरदारी ख्वाजा अपना ये तारिक रहीम साहब से, लतीफ खोसा साहब से, इनसे रहनुमाई ले लें और रजा रबानी से ले लें। रजा रबानी भी कह रहे हैं ना, वो आते तो नहीं है सामने, लेकिन उन्होंने कहा है, मैंने खुद सुना है कि 90 दिन की बंदिश है, तो उनसे रहनुमाई ले लें। तो वो फिर बता देंगे कि डायलॉग की हदूद और कयूद क्या होंगी। डायलॉग से हमने इनकार नहीं किया, लेकिन डायलॉग के पैरामीटर्स तय करने होंगे। एक नंबर 2, एक तरफ आप डायलॉग की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप इंतकामी कार्रवाइयां कर रहे हैं। अभी आपने कहा कि अली जैदी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है। वो हमारे सूबा सिंध के सदर हैं तहरीक इंसाफ के। जो सेक्रेटरी जनरल है हमारे खैबर पख्तूनख्वा के अली अमीन गंडापुर, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इमरान खान पे आए दिन केसेस हो जाते हैं। मैं रोज किसी न किसी अदालत में पेशी भुगता रहा होता हूं, झूठे केसेस की जमानतें करवा रही होती हैं। क्या डायलॉग इस माहौल में किया जाता है? डायलॉग के लिए एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट बनाई जाती है ना। क्या आप इनेबलिंग एनवायरनमेंट बना रहे हैं? ये तो दिखावे की बातें कर रहे हैं। इनकी कोई नीयत नहीं है। ये कहते कुछ है, करते कुछ है। ये आइन शिकन है, या आइन की खिलाफ वर्जियां कर रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट को तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रही हैं। जो कहते हैं ना हम बेंच को मानते हैं, ना बेंच के फैसलों को मानते हैं। बताइए, इस तरह मुल्क चल सकते हैं? क्या मुल्क का निजाम इस तरह चल सकता है? तो आप मुल्क को एक ऐसे क्राइसिस में, एक ऐसी अनार्की में धकेल रही हैं जिससे निकलना नामुमकिन हो जाएगा। मईशत आपकी बैठ गई है, IMF के साथ अभी बात आपकी अटकी हुई है, मुल्क में सनतें बंद हो रही हैं, महंगाई आसमान को छू रही है। ठीक है, वो तो प्रायोरिटी वो कहीं नहीं नजर नहीं, इन्हीं चक्रों में फंसे हुए ना। वो जो मुल्क की प्रायोरिटीज है उनको तो साइड पे छोड़ दे। अच्छा, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की तरफ से आज एक, मैं इसे स्टेटमेंट ही कहूँगी या बयान ही कहूँगी, या पाकिस्तान की खैर ख्वाही के लिए उन्होंने कहा, भाई पुराना और नया पाकिस्तान भूल जाएं। पुराना पाकिस्तान बनाना था, नया बनाना था, हमने पुराना बनाया पाकिस्तान, पहले नया बनाना था, आ गए हैं। ये उन्होंने कहा कि वी हैव टू राइज अबव दिस। कोई पुराना नए पाकिस्तान की लड़ाई छोड़कर अब यकजहती से मुल्क को मुतहम्मिल होकर इसकी पल्स को समझते हुए, इसके इश्यूज और प्रॉब्लम्स को समझते हुए
सब के सब को मिल बैठना होगा, आपस में बातचीत. आई एम गोइंग टू द जिस्ट ऑफ द मैटर. दिस इज नॉट व्हाट ही सेड कि सबको मिल बैठना होगा, बट ऑब्वियसली ही मीन्स कि बैठना होगा, बात भी करनी होगी. दहशतगर्दों को तो वो अल्टीमेटम दे चुके हैं अक्रॉस द बोर्ड. दहशतगर्दी के खिलाफ सारे का सारा जो फोकस है वो उनके लिए देयर इज नो रूम इन पाकिस्तान. तो इस बयान के बाद आपको क्या लगता है शाह साहब, दोनों तरफ से बर्फ पिघल सकती है या वो एक मैसेज ये है कि जी आई मीन लाइक यू गाइस, यू पीपल हैव टू कम टू. जी सर, गो अहेड. जैस्मिन सुनिए, जी. नंबर 1, डायलॉग की बात की उनने. डायलॉग पे हमें इनकार नहीं है, पर लेकिन डायलॉग पे पहले अपनी सफ़ों को तो दुरुस्त करें. JUI फजल रहमान जो PDM का हिस्सा है वो डायलॉग नहीं चाहती. PMLN के 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा डायलॉग चाहता है, राना सनाउल्लाह नहीं चाहता, ख्वाजा आसिफ कहते हैं डायलॉग कर लो. तो आप अपने घर को पहले दुरुस्त करें, फिर हमसे राब्ता करें. PTI को कोई इशू नहीं है, नंबर 1. नंबर 2, जो आर्मी चीफ ने कहा है, उन्होंने जो कहा है कि उन्होंने कहा 2 चीजें मुकद्दम हैं. एक, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी राय, और दूसरा आईन पाकिस्तान. हम दोनों पर मुत्तफिक हैं. हम तो कह रहे हैं कि आइन का एहतराम करो, आइन का हम तो कह रहे हैं एहतराम करो. आइन जो कह रहा है उस पर अमल दरामद करो. आइन कह रहा है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात करो, आप करवाते क्यों नहीं है? आप करवाइए, नंबर 1. नंबर 2, वो कहते हैं अवाम की राय का एहतराम करो. अवाम की राय का कौन जांचेगा, कैसे जांचेंगे? अवाम की राय का तो आपको पता चलेगा जब लोगों के पास आप जाएंगे. लोगों के पास जाते हैं आप इंतखाबात के जरिए. लोग अपने इंतखाबात के जरिए, अपने वोट के जरिए अपनी राय का इजहार करेंगे. एक तरफ PTI का नुक्ता नजर है, एक तरफ PDM का नुक्ता नजर है. लेकिन एक सेकंड शाह साहब, आपको क्या नहीं लगता? मैं आपसे एग्री करती हूं, में आवाम को फैसला करने दें, यही तो इमरान खान कह रहे हैं. यस, ओके शाह साहब, लेकिन लुकिंग एट द करंट सिचुएशन, क्या आपको नहीं लगता कि ये बयान करंट जो एक महाजर आई बिटवीन 2 institutions, the institution of the parliament and the institutions of the supreme court, के बीच में एक बैरियर बन सकता है, या इन नॉट सो मेनी वर्ड्स ये हो सकता है कि इख्तियार अवाम के मुंतखब नुमाइंदे के जरिए इस्तेमाल होगा. दहशतगर्दों से मुज़ाकरात का हमेशा बंदी सूरत सामने आएगी और हमने नए पाकिस्तान की बहस छोड़कर पुराने पाकिस्तान की बात, नई चीजों से निकलकर बात करनी होगी. सो आई मीन आई थिंक ही इज सेइंग दैट पार्लियामेंट, बताइए, पार्लियामेंट के जो नुमाइंदे हैं उनको फैसले करने के इख्तियार होने चाहिए. दैट्स व्हाट ही इज सेइंग एक्चुअली. उससे कौन इनकार कर रहा है? देखिए, उससे कोई इनकार नहीं करा. चले पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट में बहस करा लीजिए. पार्लियामेंट में बहस करवाने के लिए इनमें इतनी सख्त, इतना हौसला नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि जब कोर्ट ने फैसला जो था इलेक्शन कमीशन का जो नोटिफिकेशन था उसको उन्होंने कलअदम करार दे दिया. सिंध हाई कोर्ट ने स्पीकर की रूलिंग को कलअदम करार दे दिया. 9 के 9 MNA गए, स्पीकर से मिल के आए कि हम असेंबली में बैठ सकते हैं. हमारा जो नोटिफिकेशन हुआ था, हमें जो डी नोटिफाई किया था, वो उन्होंने गैर कानूनी करार दे दिया है. इनमें इतनी हिम्मत नहीं कि उन 9 मेंबरों को असेंबली में बैठाने दें. हमारा जो है वो नोटिफिकेशन सस्पेंड हो गया है, केस अदालत में चल रहा है, सामना करने की हिम्मत नहीं है. आइए, पार्लियामेंट में बहस करनी है तो पूरी पार्लियामेंट बिठाएं. ये अधूरी पार्लियामेंट नहीं, लंगड़ी रूली नहीं, पूरी पार्लियामेंट बिठाएं. तहरीक इंसाफ भी हो, ये भी हो, ये भी बात करें, हम भी बात करें, कौम फैसला करे कैसे करना है. नंबर 1. नंबर 2, ये बताएं कि इनके अपने अंदर डायलॉग पर यकसुई है क्या? इन्होंने फजल रहमान साहब को जो ऑपरेशन इन्हें आप कहा है कि आगे तसलसल से बढ़ेगा, उस पर कायल किया है? क्या डायलॉग पे कायल हो चुके हैं? क्या अली वजीर, क्या दावड़ साहब जो उनकी सफ़ों में बैठे हैं, क्या वो ऑपरेशन के लिए आमादा हैं? उनसे पूछिए तो सही ना, ये तो उनके हलीफ हैं, उनसे पूछिए. क्या उनकी अपनी सफ़ों में यकसुई है? नहीं है, नहीं है. मैं अर्ज कर रहा हूं, ये हकायक है. इन हकायक को जब तक हम नेशनल डायलॉग के लिए तैयार हैं,
हमें कोई मसला नहीं है। आज भी मुल्क के जो नामवर कानूनदान हैं उन्होंने भी कहा है नेशनल डायलॉग के लिए, हम नेशनल डायलॉग से नहीं भागेंगे, वी आर ए पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन डायलॉग आइन के दायरे के अंदर होगा ना, आइन से मावरा नहीं हो सकता। हम रूल ऑफ लॉ में बिलीव करते हैं, रूल ऑफ लॉ के तकाजों को सामने रखते हुए हम डायलॉग करने के लिए तैयार हैं। हम कब भाग रहे हैं? भागते तो ये हैं, इलेक्शन से ये भागते हैं, डायलॉग से ये भागते हैं, कानून की हुक्मरानी से ये भागते हैं, आइन पर अमल दरामद करने से सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से ये कतराते हैं। बात कौन कर रहे हैं? ये एक छोटा सा वक्फा ले लेंगे शाह साहब, उसके बाद मैं आपकी तरफ वापस आऊंगी। 2-3 अहम बातें मुझे आपसे पूछनी है। कहा यह जा रहा है कि अगर मैं चाहता तो 1 मिनट में इशारे मिल रहे थे कि मार्शल लॉ लग सकता था, और ये मार्शल लॉ लगना था इमरान खान की हुकूमत के ज़माने में। शाह साहब से पूछेंगे कि क्या वजह हो सकती थी इसकी। वेलकम बैक। शाह साहब, ऑब्वियसली हम खुलकर इतनी बातें कर रहे हैं, एंड यू नो लाइक आप इतना मतलब बीइंग ऑन सच अ रिस्पॉन्सिबल पोस्ट previously in the government, और वैसे भी you know one of the those politicians जो कि बहुत खुल के बात करते हैं, but they talk with a lot of मैं क्या कहूँ उसको, you know like concrete, जिसके पास वो होता है मवाद होता है, या let's say you know like पता होता है उसे बात का, सच्ची बात का। बाजवा, जनरल बाजवा, फॉर्मर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, कहा था कि 5 मिनट में मार्शल लॉ लगा सकता हूं। आसिफ जरदारी, मसला ये नहीं कि इलेक्शन से डरते हैं, एक बात ये, लेकिन पहले इस पे आ जाते हैं। कह रहे थे पहले तो हमें इशारे किनारों में बता रहे थे तो लग रहा था कि शायद ऐसा हो सकता है। इमरान मकबूल नहीं, 14 बच्चे, चले ये बातें छोड़ दें। उन्होंने कहा कि ये तो अपना चीफ लाकर 2035 तक का प्लान बनाकर बैठे थे, बस गड़बड़ वहीं से शुरू हुई। जी शाह साहब, देखिए ये बिल्कुल बेमानी बात कर रही हैं, बिल्कुल बेमानी बात कर रही हैं, गलत बात कर रहे हैं। मुझे बसाद एहतराम कहना होगा, ये सही बात नहीं कर रहे। पहली बात ये है, ये फरमा रहे हैं कि जनरल बाजवा साहब ने कहा कि मैं 5 मिनट में मार्शल लॉ लगा सकता हूं, तो ये तो अब आप उनसे पूछ लें। जरदारी साहब ये कह रहे हैं क्या आपने कहा कि नहीं कहा, वो बता सकते हैं। उनकी बात को या तस्लीम करेंगे या उसकी तरदीद कर देंगे, नंबर 1। लेकिन मैं आपको ये अर्ज कर दूं, मार्शल लॉ का दुनिया में जमाना नहीं रहा। आज आप मार्शल लॉ लगाते हैं, मुल्क जो है डिफॉल्ट के करीब है, आपका कॉमनवेल्थ के मुमालिक आपसे लाताल्लुक हो जाएंगे, यूरोपियन यूनियन जिनके साथ जीएसपी प्लस और आपकी ट्रेड का इन्हिसार है वो आपसे किनारा कश हो जाएंगे। अमेरिका की जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो उसको ओनरशिप नहीं दे सकेगी, कम से कम अल्फाज की हद तक तो नहीं दे सकेगी। तो ये मुल्क एक मजीद भंवर में चला जाएगा। मैं नहीं समझता कि मुल्क में खाने को है कुछ नहीं, मईशत का बेड़ा गर्क हो गया है। शाह साहब, ये पुरानी बात है ना, पुरानी बात है। शाह साहब, क्या आपके टेन्योर में आपको कोई ऐसी इंडिकेशंस हुई? क्योंकि अभी लेटेस्ट इंटरव्यू में बातचीत में खान साहब ने कहा कि मुझे तो बैरून मुल्क एक मुल्क से ये कहा कि क्या पता चला, एक दोस्त ममालिक से, कि भाई आपके खिलाफ बिकॉज यू वर द फॉरेन मिनिस्टर। तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या आपको ऐसी कोई पल्स मिल रही थी कि हुकूमत निकालने वाले हैं, गिराने वाले हैं? क्योंकि एक इंटरव्यू जो अब क्लेम नहीं किया जा रहा जनरल बाजवा का, उसमें उन्होंने कहा कि शेख रशीद मेरे पास 2 दफा आए एंड उन्होंने कहा हुकूमत नहीं चल रही खान से। अब उसका जवाब मैं नहीं दे सकता, इसका जवाब शेख रशीद मौजूद हैं, आप उनको फोन भी लीजिए, मैं पूछूंगी उनसे, कीजिए, उनसे जवाब मांगिए। मैं उनके बिहाफ पे बात नहीं कर सकता। चले ठीक है, आप मुझे अपना बताएं और खान साहब का बताएं कि आपको पल्स मिल रही थी। मुझसे जो मुतलका सवाल है वो कीजिए। ये है ना आपसे मुतलका कि एज अ फॉरेन मिनिस्टर क्या दुनिया में आपने जो आपने भी जो आपको इंडिकेट किया गया कहीं तक किसी तरफ से? मैं अर्ज करूं, ओके, there is an important friendly country, there is an important friendly country, जिन्होंने एक मीटिंग में जिसमें इमरान खान साहब थे उन्हें कहा कि देखिए क्या वाकईतन आपके साथ वो सपोर्ट है जो आप कहते हैं कि हम एक पेज पर हैं,
क्योंकि हमें तो इशारा मिल रहा है कि मामलात कुछ सही नहीं हैं। जिस किस्म की तनकीद, जिस किस्म की नई अरेंजमेंट, जिस किस्म का नया जोड़ तोड़ हम सुन रहे हैं, तो उससे हमें कुछ दाल में काला दिखाई दे रहा है। बिल्कुल इमरान खान साहब ने अपने एक इंटरव्यू में उसका तस्करा किया है। तो देखिए कुछ तो हो रहा था ना। ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, ये मुमकिन ही नहीं था अगर उसके पीछे कोई हाथ ना होता। क्यों? MQM और पीपल्स पार्टी सिंध में पूरे 3.5 साल एक दूसरे को कोसते रहे। कराची में MQM की क़यादत ये लोगों को कहती रही कि कराची का जितना बिगाड़ है, जितना बुरा हाल है, जो नाइंसाफी हो रही है, वो सब पीपल्स पार्टी कर रही है। आपकी तकरीरें हैं, रिकॉर्ड पे मौजूद है, और फिर उसी के साथ वो MOU करते हैं। ये सियासी मंतक नहीं बनता उसका। वो उसको जवाब नहीं बना सकते ना, उसका उनके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। ठीक है, इसी तरह शहबाज शरीफ कहते रहे कि मैं इनका पेट चाक करके लूटी हुई दौलत निकालूंगा। तो जिनका पेट चाक करके आपने लूटी हुई दौलत निकालनी थी, उनको आपने कलमदान दे दिए, अहम कलमदान दे दिए, वजारत खारजा दे दी, वजारत कॉमर्स दे दी, और वजारत दे दी। शाह साहब एक सेकंड रुकिएगा, पीछे से कुछ चल रहा था। ठीक है ऐसे तो नहीं हुआ। इसको जरा जो हमारे जो हलीफ थे, शाह साहब, हमारे जो हलीफ थे, सॉरी, कैन वी कंप्लीट दिस सेगमेंट? यस, आई कंप्लीटली एग्री। चले, पीछे से कुछ चल रहा था। ये मामला तकरीबन तब उठना शुरू हुआ जब वो जलफैज का DGISI की नोटिफिकेशन के हवाले से मामला हुआ। एंड एवरी नोक एंड कॉर्नर, वो तो कहते हैं ना, पत्ता पत्ता बूटा बूटा, जब हाल हमारा जाने ना जाने, गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने। आई होप माई शेयर इज करेक्ट, ऑल्दो आई एम नॉट अ वेरी शेयर वाला पर्सन, बट द थिंग इज दैट एवरी नोक एंड कॉर्नर वी वर हेयरिंग दिस, obviously being journalists and having contacts के who will be the next chief, this is way before 5 नाम गए। चलें, ये हो गया। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, अगर जनरल बाजवा के हवाले से ये बातें आ गई थी सामने and he was doing this, was this, I'm sure this was after the extension, and did Khan Sahab go back, or did you as a foreign minister go back and between there were talks ना? उन्होंने कहा ना बाजवा साहब ने कि टॉक्स भी हुई, जिसमें आप भी थे, दीगर लोग भी थे, 1-2 दफा हुई, करने की कोशिश भी की गई। तो डिड यू पुट दीज थिंग्स इन फ्रंट ऑफ हिम? तो उन्होंने क्या कहा, फिर क्या जवाब दिया उन्होंने कि आर वी स्टिल ऑन वन पेज और नो द पेज इज गॉन? Do you think they would own it? Do you think they will own it? नहीं, ऐसा नहीं होता। आप जब कुछ गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो आप उसका जिक्र कई दफा नहीं भी करते। तो वो तो अब देखिए तारीख का हिस्सा है, सब कुछ बाहर आ जाएगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हकायक सामने आ जाएंगे। छुपता कुछ नहीं है। लेकिन मैं हैरान हूं कि अगर आज ये जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं, हाँ, जो मिसाक जमहूरियत साइन करने वाले, मिसाक जमहूरियत में क्या था? मिसाक जमहूरियत में यह था कि कोई अगर तीसरी कुव्वत किसी सियासी हुकूमत को बेदखल करने की कोशिश करेगी, उसके खिलाफ कोई साजिश करेगी, तो हम उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। गुड पॉइंट। ये पीपल्स पार्टी ने, ये नून लीग ने तय किया था। फिर ये हिस्सेदार क्यों बन गए? हिस्सेदार क्यों बन गए? तो इसका मतलब है कि मिसाक जमहूरियत की स्पिरिट को तो दफन आपने कर दिया। तो जो मिसाक जमहूरियत की बात को नहीं, उस पर कायम नहीं रह सके, तो वो फिर चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात क्या होगी? जब मुल्क का भट्ठा बैठा दिया, इकोनॉमिक कंडीशन आपके सामने है। मुझे छोड़िए, मैं क्या कहूंगा, मिफ्ता इस्माइल साहब वो तो उनके हैं ना, जैसे मैं कह रहा हूं एतजाज साहब है, खोसा साहब है, हमारे तो नहीं है। जरदारी साहब आपके हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे तो नहीं है, शहबाज शरीफ साहब आपके हैं, आपके वजीर खजाना थे। वो लोग क्या कह रहे हैं ना, वो इकोनॉमी के बारे में क्या हो रहे हैं, वो डार साहब के बारे में क्या कह रहे हैं। ये जो सर, लास्ट 1 minute in the show today, sorry for bringing this up, although आपको पता है मुझे आपसे बात करना, you know, like I feel privileged to talk to you because I get so much information, but last minute 1 minute में आप मुझे wrap up कर दें। What do you foresee? They will let the elections happen, they won't let the elections happen, and if the elections do not happen, what will happen? देखिए,
जहां तक पीडीएम गवर्नमेंट का ताल्लुक है, ये इलेक्शन नहीं चाहते, ये हर रास्ते में रुकावट खड़ी करेंगे। अब सवाल यह है, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला ले लिया, आइन उनको उस पर तकवीयत दे रहा है, आइन के मुताबिक उन्होंने फैसला ले लिया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया है, तहरीक इंसाफ ने उसके साथ हिमायत का ऐलान कर दिया है, वकला कम्युनिटी साथ जुड़ती चली जा रही है, सिविल सोसाइटी को मिलना होगा। ये अब आपको एक फैसला करना होगा कि इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी होनी है या नहीं होनी। आइन पे हमने मुकद्दस जानना है या नहीं जानना, तो इस पे सफबंदी हो रही है, सफबंदी हो जाएगी। और देखना होगा कि आप लकीर के इस तरफ खड़े हैं, आप लकीर के इस तरफ खड़े हैं, आप मुनीर की सोच के पैरोकार हैं, आप कॉर्नेलियस की सोच के पैरोकार हैं, आप नजरिया जरूरत को चाहते हैं या आप पाकिस्तान के आइन को चाहते हैं। ये बात है ना कि आपने जो सब्सटैंटिव जो आइन की जो शिकें हैं उन पर अमल दरामद करना है या आपने आइन को अपनी मर्जी के मुताबिक ट्वीक करना है। जैसे पहले आज के कॉन्फ्रेंस में जिक्र हुआ कि 270AA आपने करना है, क्या 270 की तरफ आपने जाना है कि आगे नहीं बढ़ना? आपने क्या इजाजत देनी है हमारी अदलिया ने कि आप वर्दी में भी रह सकते हैं और इंतखाब भी लड़ सकते हैं, आप आइन में तरमीम भी कर सकते हैं? ये फैसले आप कौम को करने हैं, इंतजार नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया। शाह महमूद कुरैशी साहब से गुफ्तगू कर रहे थे आज के इस शो में, अहम सवालों को उन्होंने जवाब दिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अपना ख्याल रखिएगा, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू हुआ पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। समी इब्राहिम और सिद्दीक जान का सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाजी कैंप का ऐलान कि सोमवार के दिन से हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने कैंप लगाएं और हम सब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने बैठ जाएं और उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक आकाश वापस नहीं आए। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।